Hello friends, I am Dr. Govind Narayan Purohit, the former professor and head, Department of Veterinary Gynecology and Obstetrics, College of Veterinary and Animal Sciences, राजूवास बीकानेर। तो दोस्तों आपको मेरा नमस्कार। और आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलेंगे मेरे वीडियो लेक्चर सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी ऑफ द फीमेल, द फर्स्ट पार्ट, ओवरीज। नाउ the reproductive organs of the female animals include the ovaries, which are the generative organs because they produce the gamete, female gamete, the ova, and it also includes the tubular genitalia, the oviduct, the uterus, the cervix, the vagina, and the external genitals. So today we talk about the generative organs, the ovaries. ओवरीज को जनरेटिव ऑर्गन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फीमेल गैमीट oocyte या ओवा को रिलीज करती हैं, जिससे जो कि मेल की गैमीट से फर्टिलाइज होता है और एम्ब्रियो और सब्सिक्वेंटली जो है यूट्रस में ग्रो करता है 9 महीने के लिए, एंड this produces a new young one. So the ovaries are the generative organs. The ovaries perform two functions. One is the production of the female gamete, and the second one is the production of the two steroid hormones which regulate the reproductive cycle. The two steroid hormones which the ovaries produce are the estrogens, uh, uh, which are responsible for the external expression of the estrus, and then the second hormone is progesterone, which is produced by the another temporary endocrine gland formed on the ovary, uh, the corpus luteum, which produces another hormone, the progesterone, and which maintains the pregnancy. तो दोस्तों आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज के एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की। ओवरीज जो है कैसे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। देखिए, इन दी एम्ब्रियो there is formation of a layer what is known as the mesoderm. The mesoderm leads to formation of the urogenital ridge, and it is from this urogenital ridge the genital system of the female and the urinary system of the female also develops. There is development of two mounds, the lateral mound and the medial mound by the urogenital ridge, and these two mounds, they lead to, the lateral mound leads to the formation of the mesonephros, and the medial mound leads to the formation of the gonadal ridge. Then the cells of the dorsal endoderm of the yolk sac, they divide by mitosis, and they are then known as the primordial germ cells. The primordial germ cells continue to multiply, and then they start migrating towards the gonadal ridge. The mesonephros, parts of the mesonephros remains attached, or cells of the mesonephros and the gonadal ridge collectively contribute to the formation of the ovary. So it is the gonadal ridge, cells of the gonadal ridge and the mesonephros which lead to formation of the ovary in the female. The mesonephros forms the subsequent structure, the pronephros and the metanephros and the mesonephric tubules, which lead to development of the urinary system. Now, in this picture, you can very well see
the this is a embryo which is growing, a very young embryo, and you can see here this is the mesonephros and this is the gonadal ridge. And then these are the primordial germ cells migrating from the yolk sac to the gonadal ridge to contribute the cells of the ovary. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गोनाडल रिज और मीजोनेफ्रोस फिर सेपरेट होते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं, एंड द देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द mesonephric tubules and then the mesonephric duct and the paramesonephric duct. The mesonephric duct and the paramesonephric duct lead to development of the tubular genitalia and the external genitalia both in the male and the female. We will talk about it in a later lecture. Now this picture, it is showing the migration of the from the gastrula stage of the embryo from the yolk sac. The primordial germ cells start migrating and reaching the gonadal ridge to form, along with the mesonephric duct, the structure of the ovary in the female. Now, during gestation, what happens? The yolk sac endoderm, as we talked earlier, leads to formation of two types of cells: the primordial germ cells and the germ cell cords. The primordial germ cells migrate to the gonadal ridge, continue to multiply by mitosis, and then their multiplication is arrested. Then they multiply by meiosis and are arrested at the prophase 1. The germ cell cords, they contribute to the epithelial cells, and these epithelial cells condense around the primordial germ cells arrested at the prophase 1 to form what is known as the primordial follicle. The primordial follicles, the number is fixed, and at birth the number is fixed. So a female is born with the requisite number of the primordial follicles, and these in the ovary, and these primordial follicles will subsequently undergo growth, atresia, to constitute the reproductive cycle of the डोमेस्टिक एनिमल स्पीशीज. तो जब जो है फीमेल की बर्थ होती है तो उसकी ओवरीज में एक निश्चित नंबर के प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं. अब जिस समय ड्यूरिंग द फीटल ग्रोथ देयर इज माइग्रेशन ऑफ द ओवरी during the fetal development. In the dog and cat, there is no migration, and the ovary remain in the abdominal cavity, caudal to the kidneys. दूसरे जानवरों में माइग्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है रूमिनेंट स्पीशीज में, where the ovaries migrate close to the ventral abdomen, just near the pelvic cavity, and in the pigs the ovaries descend to the middle of the abdomen. Now ओवरी की जो है हर स्पीशीज में अलग अलग शेप होती है. बेसिकली द ओवेरियन शेप इज ओवॉइड और राउंड इन द रूमिनेंट स्पीशीज, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी. इन द मेयर द शेप ऑफ द ओवरी इज किडनी शेप और bean shaped, and the size is comparatively larger. In the sow, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, इसलिए उस ओवरी की शेप जो है मलबरी शेप या बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होती है, अंगूर के गुच्छे की तरह होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं. बिच की ओवरी जो है उसकी शेप वैसे पता नहीं लग सकती, क्योंकि बिच की ओवरी बर्सा में एनक्लोज होती है. द कैमल ओवरी, it is dorsoventrally flattened, round to ovoid, and the camel ovary has hemorrhagic follicles. अगर आप कैमल की फीमेल कैमल की ओवरीज कलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान, तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ एक फॉलिकल्स में ब्लड होता है.
We will talk about it in a later lecture when we talk about the functionality of the reproductive organs. जो राइट ओवरी होती है कैटल में, वो लेफ्ट ओवरी के मुकाबले में छोटी होती है, और क्योंकि राइट ओवरी ज़्यादा एक्टिव होती है कैटल में। अब हम बात करते हैं जो ओवरी के जो पोल्स हैं, सरफेसेस हैं, बॉर्डर्स हैं। देखिए ओवरी के अंदर दो पोल्स होते हैं। ये ओवरी का ये एंड जो है यूट्रस की तरफ है, तो ये यूट्राइन पोल है, और ये दूसरा वाला हिस्सा जो है ये फिम्ब्रिया ऑफ द ओविडक्ट की तरफ है, तो ये ट्यूबल पोल है। तो ओवरी में दो पोल हो गए, ट्यूबल पोल एंड द यूट्राइन पोल। फिर दो बॉर्डर हो गए, यहाँ से ओवरी अटैच्ड है, सो दिस इज द अटैच्ड बॉर्डर। और ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ओवरी का फ्री है, इस पर कोई अटैचमेंट नहीं है, सो दिस इज द फ्री बॉर्डर। देन it has got two surfaces, the medial surface and the lateral surface and the medial surface. तो ये ओवरी को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं उसके दो पोल होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, और दो सरफेसेस होते हैं। नाउ वी टॉक ऑफ द ओवेरियन अटैचमेंट्स। हम बात करते हैं कि ओवरी कैसे अटैच रहती है और कैसे वो जगह पर बनी रहती है। देखिए ओवरी जो है is attached by peritoneal ovary is attached by a extension of the peritoneal sheet, what is known as the broad ligament. और पूरी जेनिटेलिया ये ब्रॉड लिगामेंट होल्ड करके रखता है। यू सी दिस इज अटैच्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, एंड दिस इज द ओवरी। तो ये इसको होल्ड करके रखता है, ये मेयर की ओवरीज हैं। एंड देन दिस इज द कैटल ओवरी। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कैटल ओवरीज में भी जो अटैचमेंट ओवरी का यूट्रस के साथ होता है, दैट इज द प्रॉपर लिगामेंट, एंड द अटैचमेंट विच अटैचेस द ओवरी टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। लेकिन जो भी हो, जो पार्ट ब्रॉड लिगामेंट का ओवरी को होल्ड करके रखता है उसको कहते हैं मेसोवेरियम। Then it is clearly known for the bitch that the bitch ovarian attachments, they have include the proper and the suspensory ligament, and suspensory ligament originate from the last rib. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओवरी है, ये बिच की ओवरी है, एंड देन these are the fimbriae, and then here is the ligament which holds the ovary to the which originate from the last rib and keeps the ovary in place. Now we talk of another structure related to the ovary, and that is the ovarian bursa. देखिए ovarian bursa जो है वो is a pocket formed by the pocket which is formed by the uterovarian ligament and the mesovarium. कुछ लोग कहते हैं कि मेसोवेरियम खुद ही एनक्लोज कर लेती है ओवरी को दोनों साइड में, अटैच भी वही करती है, वट एवर इट इज। लेकिन ओवेरियन बर्सा, ये देखिए ये गोट की ओवरी है, और ये यहाँ पे जो है उसका जो है यूट्रो ओवेरियन अटैचमेंट है, और ये मेसोवेरियम है जो ओवरी को होल्ड करके रखा है। एंड दिस इज द स्पेस विच इज नोन एज द ओवेरियन बर्सा। ये खाली जगह जो है इसको ओवेरियन बर्सा कहते हैं। ये मेयर की ओवरी है, एंड दिस इज द ओवेरियन बर्सा फॉर द मेयर ओवरी। ये कैटल की ओवरी है, आप देख रहे हैं कि ये जो ओवरी है, और ये इसके पास में ये वाला हिस्सा जो है ये ओवेरियन बर्सा है। The ovarian bursa is open on one end in most domestic animal species except the bitch, the rat and the mouse. Now, जैसे हमने बात की कि बिच में जो है ओवरी ओवेरियन बर्सा के अंदर होती है, सो दिस इज अ पिक्चर शोइंग ये ओवेरियन बर्सा को यहाँ से काट लिया है। सो नाउ दिस exposes the ovary, this is the left ovary, and these are the structures which we call the
corpus luteum, and this is the ostium सराउंडेड बाय द इनफंडिबुलम। तो यहाँ पे जब भी ओवुलेशन होता है ये इस ऑस्टियम में चला जाता है और वहाँ से फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नाउ वी टॉक ऑफ द कैमल ओवरी। देखिए कैमल की ओवरी के साथ जो एसोसिएटेड बर्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओवेरियन बर्सा कैटल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ओवरी के बर्सा के साथ एडिशंस हो जाएंगे तो अगर वो कंप्लीट एडिशंस हो गए तो ओवरी में से फॉलिकल को जो है ओविडक्ट पकड़ नहीं सकेगी, तो एनिमल इनफर्टाइल हो जाएगा। लेकिन कैमल में ये एक कंफ्यूजिंग सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है विच इज़ नोन एज द हाइड्रोबर्साइटिस। हाइड्रोबर्साइटिस इज द accumulation of the fluid within the bursa of the female camel। और ये हाइड्रोबर्साइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ख़ास तौर से वो लोग जो अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन कर रहे हैं फीमेल कैमल की, उनके लिए ये हाइड्रोबर्साइटिस जो है बड़ी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब वो अल्ट्रासाउंड से उसको एग्जामिन करते हैं तो उनको लगता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है, जबकि ये फ्लूइड जो दिखाई देता है वो बर्सा में जो एक्यूमुलेट हुआ हुआ फ्लूइड है वो उनको दिखाई देता है एंड दे थिंक दैट द एनिमल इज प्रेग्नेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। देखिए या लेयर्स ऑफ द ओवरी। जो ओवरी है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे आउटर जो होती है वो क्यूबॉइडल सरफेस एपिथेलियम होती है। कुछ टेक्स्ट बुक्स कहती हैं जर्मिनल एपिथेलियम, लेकिन क्योंकि वो किसी भी तरह के उसमें हेल्प नहीं करती, इसलिए सरफेस एपिथेलियम इज अ बेटर डिस्क्रिप्शन। देन देयर इज द ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है is the structure which has the ovarian follicles, and from here the ovarian follicles grow and maintain the reproductive cycle of the female animal. Then there is the medulla. medulla जो है वो inner part है और उसमें जो है vessels और nerves और lacteals और कई सारी चीज़ें होती, कई सारी कनेक्ट वो होती हैं। Then there is a confusion about the ovarian stroma. What is the ovarian stroma? Ovarian stroma is the connective tissue which is present both in the cortex and in the medulla. The outermost connective tissue of the ovary just above the cortex is condensed and is known as the tunica albuginea. तो स्ट्रोमल सेल्स दोनों ही जगह पे होते हैं, कॉर्टेक्स में भी होते हैं, मेडुला में भी होते हैं, and some recent evidence suggests that the stromal cells play a role in production of estrogen. So here you can see the structure of the ovary in a cross section. देखिए ये जैसा मैंने कहा स्ट्रोमा दोनों जगह पे होता है। ये जो है सरफेस एपिथेलियम है, ये इसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो कि इस पूरी ओवरी को कवर करती है एक्सेप्ट एट द हाइलस। ये हाइलस है जहाँ से ओवरी अटैच होती है और जहाँ से वेसल्स और नर्व्स ओवरी के अंदर एंटर होती हैं। देन द कॉर्टेक्स हैज़ द follicle. You can see here small follicles, and follicles sequentially grow. We will talk in a later lecture how they grow and how they ovulate. ये follicles जो है इसके सरफेस पे ग्रो करके ओवुलेट होंगे और ये जो ओवा दिखाई दे रहा है ये ओवा जो है ये बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा और इसको फिम्ब्रिया ऑफ द ओविडक्ट कैच कर लेगी और वो उसमें चला जाएगा और अगर आपने मीटिंग दी है तो उसमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। नाउ दिस इज द कॉर्पस लूटियम। अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कॉर्पस लूटियम भी आपको दिखाई देगा। देन वी टॉक ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी इन द कैटल एंड मेयर। देखिए कैटल में कॉर्टेक्स जो है और ज़्यादातर स्पीशीज़ में बफलो, शीप, गोट, कॉर्टेक्स जो है आउटर लेयर होती है और इसी में जो है ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और मेडुला जो है
वो इनर लेयर होती है, लेकिन मेयर में कॉर्टेक्स इनर लेयर होती है और मेडुला आउटर लेयर होती है। मतलब ये रिवर्स हो गया, कैटल से उसके स्ट्रक्चर जो है रिवर्स हो गया। और ये जो फॉलिकल्स हैं ये इस कॉर्टेक्स में ग्रो करते हैं। कैटल की ओवरी में सरफेस पर ओवुलेट करते हैं, लेकिन मेयर की ओवरी में ये ओवुलेट होते हैं इन द ओवुलेशन फॉसा। ये ओवुलेशन फॉसा में जाके ओवुलेट होते हैं। Then, as far as the ovary of the bitch is concerned, the canine surface epithelium is invaginated into underlying stroma and make numerous spherical structures called the cortical tubules. ये आप देख रहे हैं, ये cortical tubules हैं, ये स्पेसिफिक है बिच की ओवरी में। Now we talk of the location of the ovaries. The कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? The ovaries are located in most domestic animal species on the pelvic floor. ये pelvic floor है, यहाँ पर लोकेटेड होती हैं। कुछ ज़्यादातर स्पीशीज में, रूमिनेंट्स में, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बफलो, सभी में ओवरी जो है पेल्विक फ्लोर पर लोकेटेड होती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द यूट्राइन हॉर्न्स, and the uterine horns also lie on the floor of the pelvis. In some large Holstein Friesian cows, the uterine horns may be just ahead of the pelvic brim, suspended in the abdominal cavity. Now during pregnancy क्या होता है कि ये यूट्राइन हॉर्न जो है ये बड़ा होता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो इसके साथ में ये ओवरी भी जो है वो ड्रैग हो जाती है नीचे की तरफ, और इसलिए जो है ओवरी की लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाता है। As far as the Mayer ovaries are concerned, the Mayer ovaries are a landmark for transrectal palpation. The Mayer ovaries are located in the sublumbar area, ventral to the 4th or 5th lumbar vertebra, caudolateral to the iliac wings. करीब यहाँ पर इलियक, इस जगह पर इलियक विंग्स होते हैं, इससे यहाँ पर इलियक विंग्स होते हैं, और इससे थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड बिहाइंड द किडनी। ये देखिए ये किडनी है, इसके नीचे की तरफ, ये पीछे की तरफ ये ओवरीज लोकेटेड होती है। नाउ जब आप ट्रांसरेक्टल पल्पेशन मेयर का करेंगे तो आपको पहले ओवरीज ग्रैब करनी पड़ेंगी, और फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यूट्राइन हॉर्न्स मेक आउट कर पाओगे। ये देखिए ये ओवरीज जो है ये दोनों सस्पेंडेड अप हैं, जबकि कैटल में वो नीचे की तरफ पेल्विक फ्लोर पर होती हैं। तो ये डिफरेंस है लोकेशन का ओवरीज में। देन इन द साउथ द ओवरीज आर located near the kidneys, near the lateral margins of the pelvic inlet. In the bitch जो ओवरीज होती हैं एब्डोमिनली लोकेटेड होती हैं, जैसे कि साव में, और ये बिच में जो है ये ओवरीज की लोकेशन होती है जस्ट लैटरल, जस्ट 1 to 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉर्डल पोल ऑफ द किडनीज। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये किडनी है, ये देख रहे हैं आप ये किडनी है, और इसके जस्ट पास में ये ओवरी है, और थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के जस्ट नीचे ये किडनीज लोकेटेड होती हैं। So when you are performing a trans-abdominal ultrasound to visualize the ovaries of the bitch, you will have to keep in mind the location of the ovaries is abdominal. It's more closer to the skin, and you will have to use a high frequency probe. कम से कम आपको 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रोब चाहिएगा। इससे कम के प्रोब से आप जो है बिच की नॉन प्रेग्नेंट बिच की ओवरीज नहीं देख पाएंगे। Then the functional structures, we talk of the functional structures of the ovary. Ovary has two functional structures. The follicle, here you can see follicles are visualized on both the ovaries. यहाँ पर भी follicle है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
ये इतने सारे फॉलिकल्स ओवरी पे एक साथ कैसे होते हैं, वी विल टॉक इन ए लेटर क्लास ऑन फॉलिकुलर डायनेमिक्स। और दूसरा जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को रेगुलेट करता है वो है कॉर्पस लूटियम। सो कलेक्टिवली द फॉलिकल एंड द कॉर्पस लूटियम, they regulate the reproductive cycle, and then the corpus luteum produces one hormone which is known as the progesterone, जिसको हम शॉर्ट में P4 कहते हैं। और फॉलिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन दैट इज नोन एज द ईस्ट्रोजन, जिसको हम शॉर्ट में E2 भी कहते हैं। Now the growth of the follicles, we will talk a little bit about the growth of the follicles, and these two structures regulate the reproductive cycle of the domestic animal species. Now जब पैदा होता है बच्चा, जैसे हमने बात की प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है उनकी संख्या एक हीफर में 27,110 दिन पे होती है, लेकिन ये नंबर रिड्यूस होके 68,000 पे रह जाता है बर्थ के 13 दिन बाद। लेकिन आप कंपेयर करें तो बफलो हीफर में ये नंबर 210 डेज पे ही 23,000 होता है, और बर्थ पे तो और भी कम हो जाता है 20,000 एट बर्थ। सो the number of follicles is too less in the buffalo as compared to cattle, and that probably is one reason for poor reproduction in the buffalo species, probably. Then ovarian structures जो है वो continuously grow करते हैं, and birth के बाद ऐसा कुछ reports कहती हैं कि 8 to 14 weeks पे थोड़ी सी ग्रोथ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की होती है, एंड देन दे कन्वर्ट इनटू ग्रोइंग फॉलिकल, एंड देन ग्रोइंग फॉलिकल टू ए प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल में एक जोना पेलुसिडा एक बन गई है, सो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, एंड देन दिस इज द oocyte विच इज प्रेजेंट इनसाइड, और ये बाहर जो है उसके क्यूमुलस सेल्स भी अपीयर हो गए हैं। सो बेसिकली इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स to form during the growth of the follicles. Then you can see here the growth of the primary follicle to a primordial follicle to a primary, and then secondary, and then tertiary, और tertiary के बाद graphian या ovulatory follicle. Now this nomenclature has been changed, और ये जो graphian follicle उसको आजकल pre-ovulatory follicle कहते हैं, या डोमिनेंट फॉलिकल एंड देन कन्वर्टिंग इनटू ए प्री ओवुलेटरी फॉलिकल। ये जो है oocyte है, इसके बाहर ये क्यूमुलस सेल्स लगे हुए हैं, और ये oocyte रिलीज होगा जब ये फॉलिकल यहाँ से रप्चर होगा, एंड देन द oocyte विल गो आउट, एंड जैसे हमने पहले बात की फिम्ब्रिया ऑफ द ओविडक्ट इसको कैच कर लेगी, एंड इफ द एनिमल हैज बीन मेटेड इट विल बिकम प्रेग्नेंट। दी ओवेरियन स्ट्रक्चर्स का जो नया नॉमेनक्लेचर आजकल जो दिया जा रहा है वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी, लेट प्राइमरी फॉलिकल, एंड देन द प्री एंट्रल फॉलिकल, एंड देन द स्मॉल एंट्रल फॉलिकल। एंट्रम क्या होता है? एक छोटी सी स्पेस जो अंदर क्रिएट हो जाती है, ये प्री एंट्रल है, एंट्रम अभी बना नहीं है। ये स्मॉल एंट्रल है, अब इसमें बड़ा स्पेस बन गया है क्योंकि ये फॉलिकल के सेल्स जो हैं वो सिक्रीटरी एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि फॉलिकुलर फ्लूइड उसमें आ जाता है। तो इसको इसलिए इसको एंट्रल और देन लार्ज एंट्रल, एंड देन जो प्री ओवुलेटरी फॉलिकल होता है उसमें बहुत सारा फ्लूइड हो जाता है, फॉलिकुलर फ्लूइड विच कंटेन्स ईस्ट्रोजन एंड मैनी अदर थिंग्स, एंड देन दिस फॉलिकल ओवुलेट्स। नाउ एज पर वन एस्टिमेट द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ सप्रेस्ड रहती है टिल द एनिमल अटेन्स प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद रेगुलर साइक्लिसिटी एनिमल में शुरू हो जाती है, और हर 21 दिन से वो हीट में आता रहता है जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो। प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी फॉलिकुलर एक्टिविटी चलती रहती है, फर्क कुछ होता है कि एंड द फॉलिकुलर एक्टिविटी सीजेस इन द प्रेग्नेंट एनिमल ड्यूरिंग द लास्ट 2 months ऑफ गेस्टेशन इन कैटल। तो इस जो है अनुमान के हिसाब से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने में 150 दिन का समय लगता है, जब वो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स कम हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को
प्री एंट्रल फॉलिकल में कन्वर्ट होने में करीब 120 दिन का समय लगता है, और प्री एंट्रल फॉलिकल्स को एंट्रल फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने में 70 दिन का समय लगता है। एंट्रल फॉलिकल्स को बाद में प्री ओवुलेटरी फॉलिकल में पहुंचने में करीब 14 दिन का समय लगता है। तो ये एक एस्टिमेट है। देन द फॉलिकल्स में एंटर इनटू एट्रीजिया, प्लांट फिजियोलॉजिकल सेल डेथ, कभी भी वो उसमें से एंटर हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल डेथ में। नाउ वी विल टॉक ऑन द follicular development in a subsequent lecture on follicular dynamics in cattle. Now we will also talk about the ovarian changes, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जब एनिमल हीट में आता है तो एक बड़ा फॉलिकल होता है, वो ओवुलेट होता है। ओवुलेट होता है तो उसमें से ओवा जो है बाहर निकल जाता है, और ये जो बचे हुए फॉलिकल सेल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होते हैं टू फॉर्म what is known as the corpus luteum. This corpus luteum is maintained for entire gestation if the animal has become pregnant. In species like cattle, goat, buffalo and pigs, and even the bitches and camel. In species like sheep, ये पूरी gestation में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीप और मेयर में जो है प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो और अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो 16-17 दिन पे एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इट कॉजेज द लाइसिस ऑफ द सीएल, इसको ख़त्म कर देता है और वो जानवर वापस से हीट में आ जाता है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल। आशा करता हूँ कि सॉरी आपको ये पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट दें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल गोविंद नारायण पुरोहित को सब्सक्राइब करें। विश यू ए नाइस डे and hopefully I will come up with more video lectures to explain you better. Thank you so much. Bye bye.